Welcome students. This is chapter 3 of class 10 book First Flight. First Flight contains two stories. The first one we are reading. This is his first flight, and the next one which we will read later, that is Black Aeroplane. So what is there in this story? This story is about a young seagull which is very afraid of flying. His brothers and sisters, in fact they are younger than him, they have small wingspan as compared to him, but they have already flown up from his ledge. He is very angry as they have left him 24 hours earlier. He is completely dependent on his mother for his food, and as they are not there on his ledge, not there at his presence, so he is hungry. Because of hunger, he is getting mad. Now, what happens? Suddenly, they are residing at a plateau near his ledge. He sees his mother flying towards him with a piece of fish in his beak, in her beak. He screams with joy, and he thinks that his mother, is bringing food to him. That's why he screams with happiness. Now, what happens next? He leaned out. वो आगे की ओर झांकता है and eagerly tapping the rock with his feet. वो खुश होकर क्या करता है? अपने पैरों को जमीन पर पटक रहा है, पंजों को, trying to get nearer to her as she flew across. और वो पटक इसलिए रहा है और उसी दौरान वो कोशिश क्या कर रहा है कि जितना नजदीक हो सके अपनी माँ के पहुंच जाए. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she is not come near him. And then, maddened by hunger, he dived at the fish. यहाँ पर उनकी माँ जो है वो क्या की है कि उसके लेज के नजदीक जाकर एकदम से रुक गई. ठीक है, एकदम से रुक गई है. वो मछली का टुकड़ा अभी भी उसकी चोंच में है और इतनी ही दूरी पर है कि वो जो बच्चा, जो सीगल है, वो पहुंचा सके अपनी चोंच को, लेकिन इतनी नजदीक भी नहीं है कि वो उस पत्थर पर खड़े खड़े उस चोंच को पहुंचा सके वहां तक. उसके लिए उसको करना क्या होगा? थोड़ा आगे बढ़ना होगा. वो बच्चा वही करता भी है, वो यंग सीगल वही करता भी है, और क्योंकि भूखा है इस कारण से वह भूख की जो परेशानी है उसमें पागल होकर वह खाने की ओर कूद पड़ता है. अब वो कूदा तो क्या हुआ? वो अपने लेज से नीचे गिर गया. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और एक चीख के साथ वह बाहर, लेज से बाहर और नीचे जमीन की ओर जाने लगता है. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. तभी एक डरावना बड़ा सा डर उसके दिल में घुस जाता है और उसका हार्ट अचानक से रुक जाता है. He could hear nothing. उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है. But it only lasted a minute. वो कुछ एक मिनट के लिए ही ये स्थिति रुकी. उसके बाद क्या हुआ? Now the situation changes. The next moment he felt his wings spread outward. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach, and against his wings. He could feel the tips of his wing cutting through the air. He was not falling headlong now. अब ये स्थिति जो है एक मिनट के लिए हुई और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पंख फैल गए हैं. हवा जो उसके सीने से होकर, उसके सीने के पंखों से होकर गुजर रही है, उसके सीने से फिर उसके पेट के नीचे से गुजर रही है. वो अपने विंग्स, जो पंख हैं, पंख का जो किनारा है, विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, हवा को वो काटता हुआ महसूस कर रहा है. अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था. हेडलॉन्ग मतलब सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था. अब he was soaring gradually downward and outward. He was no longer afraid. अब वो हवा में इस तरह से ऊपर नीचे बह रहा था. अब उसे डर भी नहीं लग रहा था. He just felt dizzy.
डिजी का मतलब क्या होता है, जैसे आप एक ही जगह पर 5-7 राउंड 10 राउंड घूम जाते हैं तो कैसा आपको सिर्फ महसूस होता है जैसे दुनिया घूम रही है, दैट इज कॉल्ड एज डिजीनेस। तो वो भी थोड़ा वैसा ही महसूस कर रहा था क्योंकि वो पहली बार उड़ रहा था और काफी ऊंचाई से नीचे की ओर आ रहा था। Then he flapped his wings again once and he soared upward। और तभी वह अपने पंखों को नीचे की ओर धकेलता है तो वो ऊपर उठ जाता है। अब उस तरफ से आवाज आ रही है का 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 गा 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 काउ कॉल आ। His mother swept past him, her wings making a loud noise। और यह आवाज निकालते हुए उसकी मां तेजी से उससे आगे जाती है और एक आवाज होती है उस दौरान उनके पंखों से। He answered her with another scream। वो अपनी मां को दूसरी आवाज के साथ जवाब देता है। Then his father flew over him screaming। उसके पिता उसी समय उसके ऊपर से उड़कर गुजरते हैं। He saw his two brothers and his sister flying around him, coveting and banking and soaring and diving। और पहले तो उसकी माँ उसके किनारे से गुजरी, उसके पिता उसके ऊपर से गुजर रहे हैं। तभी वो देखता है कि उसके भाई बहन भी जो है उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं। कॉबटिंग, कॉबटिंग मतलब घोड़ों की तरह ऊपर नीचे उछलते हुए उड़ना। बैंकिंग, वो एक पंख जो है और दूसरे पंख एक दूसरे से ऊपर की ओर उड़ना। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और ऊपर और नीचे की ओर इस तरह से उड़ना। देन ये सारे के सारे उड़ने के दौरान की जाने वाली क्रियाएं हैं। These are all actions when performed. These all actions are performed while flying. Coveting, banking, soaring, diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve shrieking shrilly। तभी वो पूरी तरह से, अब वो पूरी तरह से भूल गया था कि वो पहले उड़ता नहीं था। अब वो डाइव कर रहा है, सोर कर रहा है, कर्व कर मतलब अचानक से मुड़ रहा है और उस दौरान वो खुशी के मारे चीख भी रहा है। श्रीकिंग, चीखना, श्रीकिंग श्रीली, वो खुशी के मारे चीख भी रहा है। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean। He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and turned his beak sideways and cawed amusedly। वो अब नीचे पहुंच गया था, समुद्र नीचे था और समुद्र के थोड़े ही ऊपर वो उड़ रहा था। देख रहा था समुद्र सामने, जो सागर है वो सामने दिख रहा है। उसके सामने बहुत दूरी तक केवल हरा ही हरा, समुद्र का पानी हरा ही हरा फैलाव हो रखा है। उसके ऊपर छोटी छोटी लहरें बनी हुई है और वो उस पर उड़ रहा है। वो अपने चोंच को बाईं और दाईं तरफ देखता है और खुशी के मारे का आवाज निकाल रहा है। His parents and his brothers and sisters had landed on the stream flowing ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly। उसके पिता और उसके भाई बहन जो हैं वो उस समुद्र पर उतर चुके थे। वो बतख की तरह तैर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो उसके ऊपर उतर गए थे। वो उसे बीकनिंग, बीकनिंग मतलब होता है किसी जगह पर उतरने का सिग्नल देना। तो वो उसको बीकन कर रहे थे, उतारने के लिए श्रीली आवाज लगा रहे थे। He dropped his legs to stand and on the green sea his legs sank into it। तो वो क्या किया, उतरने के लिए पानी के ऊपर पैर रखने का प्रयास किया, लेकिन क्या ऐसा होगा? नहीं। क्या हुआ? उसके पैर डूब गए। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings। अब जब पानी में उसका पैर डूबा तो वो डर गया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसको पानी पर खड़ा होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे वो पानी पर पैर रखा, पानी है तो डूब गया। तो उसको डर लग गया इससे, इसके कारण वह फिर से ऊपर उड़ने का कोशिश किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अब वो थक चुका था और अब वो पंखों को फड़फड़ाकर वापस उड़ना नहीं, मतलब उड़ नहीं सक रहा था। सो वो थक गया था, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना। तो वो थक चुका था भूख के कारण और उड़ नहीं सका। एग्जॉस्टेड by the strange exercise, his feet sank into green sea and then his belly touched it and sank no further। उसके बाद क्या हुआ? उसके पैर तो समुद्र में
से डूब गए। उसके पैर डूबने के बाद, जैसे मान लीजिए ये पक्षी का पैर है तो बॉडी यहां से होता है, तो ये क्या हुआ कि उसके पैर तो डूब गए, जब बॉडी की बारी आई यानी पेट की बारी आई तो वो उसके नीचे और नहीं गए। He was floating on it, वो उस पर तैर रहा था। And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of crawfish. उसका परिवार उसके चारों तरफ बैठा हुआ था, तैर रहा था, और वो लोग खुश थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, और अपनी चोंच में डॉगफिश, एक मछली की प्रजाति का नाम है डॉगफिश, तो वो डॉगफिश के छोटे छोटे टुकड़े उसको खाने के लिए ऑफर कर रहे थे। He had made his first flight, और आखिरकार उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी। So this is ये चैप्टर जो है आपको बता रहा है, क्या बताने का प्रयास कर रहा है, क्या सीख आपको मिल रही है कि जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं, जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते हैं, तब तक जो सफलता की सीढ़ी है आप उस पर शुरुआत नहीं कर सकते हैं। एक उदाहरण मान लेते हैं कि कुछ लोगों को तैरने में डर लगता है, तो वो क्योंकि तैरना नहीं जानते हैं इस कारण से वो पानी में नहीं जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो अगर वो पानी में जाएंगे नहीं तो तैरना कैसे सीखेंगे? तो ये दोनों आपस में काफी कंट्रोवर्शियल है। इसलिए जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते हैं तब तक आप सीढ़ी पर चढ़ भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें भी यही हुआ, जब तक उसने पहली बार अपने डर, भले ही उस अनजाने में वो ऊपर से कूद गया, लेकिन जब तक वो वहां से कूदा नहीं तब तक वह अपने डर पर काबू नहीं पा सका, तब तक वो उड़ना भी नहीं सीखा।